Hello students, today we will see AD currents. Okay, so in Faraday's experiment, okay, we already learned that whenever magnetic flux which is linked with the coil is changes, the current is induced in it. Okay, and direction of that induced current, okay, is such that it opposes what? Change in magnetic flux, okay, which will be already learned in a Lenz's law. So over here, let's see what is eddy currents. Okay, so whenever any bulk piece of conductor is subjected to changing magnetic flux, okay, currents are induced in them. Okay, मतलब कंडक्टर से अगर उसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, एंड फ्लो ऑफ पैटर्न ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट इज व्हाट इट लुक्स लाइक अ स्वर्लिंग एडीज इन अ वाटर. ठीक है, स्वर्लिंग एडीज का जो फ्लो होता है उसके जैसे सिमिलर फ्लो होता है ये करंट का. ठीक है, सो हियर वी कैन से द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर लुक लाइक व्हाट, स्वर्लिंग एडीज इन अ वाटर. दिस इज द रीजन व्हाई दिस करंट्स आर नोन एज अ एडी करंट्स. इसलिए ऐसे करंट्स को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय व्हाट, फिजिसिस्ट फुको. ठीक है, तो फुको ने सबसे पहले ये इफेक्ट डिस्कवर किया था. ठीक है, चलो तो पहले समझते कि ये स्वर्लिंग एडीज क्या होता है इन अ वाटर. सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड रोटेट इट. ओके, यू कैन सी द shape of water, or you can see the shape of water current inside that glass. Okay, that looks like it is what, swirling eddies. So यहाँ पे current flowing in a copper plate, or you can say any conductors made up of a copper, aluminum. Okay, flow of a current inside this conductor is look similar to what that eddies. Okay, it is the reason why it is known as a eddy currents. Okay, so here definition is very simple, that when a bulk piece of conductor is subjected to changing magnetic flux, currents are induced in them. Okay, and flow of current is similar to what, swirling eddies in water. This is the reason why these currents are known as what, eddy currents. Okay, now let's see electromagnetic damping. Damping क्या होता है ये पढ़ेंगे, electromagnetic damping in short. So here you can see that one metallic copper plate is allowed to swing, allowed to oscillate, you can say, in between these two strong poles of a magnet. Okay, so over here when this copper plate allowed to oscillate, what happens in the region between the magnetic field of these two strong poles of a bar magnet, the motion, or you can say oscillations of this metallic copper plate gets damped. Means what, oscillations gets reduced with time. Okay, and here this reduction is not due to what, energy loss, kinetic energy loss in form of potential energy, but this loss is in form of heat energy. Okay, so let's understand how this oscillation gets reduced. Okay, so once again, whenever the metallic copper plate, okay, is allowed to oscillate between the two strong poles of a bar magnet, okay, its oscillations get reduced with time. Okay, and it comes to rest within a very short time. Okay, so here we can say this phenomena is known as what, electromagnetic damping. Once again it is known as what, electromagnetic damping. So let's understand how the oscillation gets damped over here. So here we can say when metallic copper plate is moving inside this two poles of bar magnet, in a region between these two poles of a bar magnet, जब inside आ रहा है, when it is swinging in, what happens, magnetic flux link with it is increases as it moving in, flux increase हो रहा होगा, so obviously current must induce in this copper plate, or you can say eddy current must induce in this copper plate in a direction in which it decreases that flux according to Lenz's law. जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को क्या करता है, अपोज करता है. मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे करंट ऐसी ही डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिसकी वजह से वो क्या करे, फ्लक्स को क्या करे, मतलब चेंजिंग फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे. ठीक है, मतलब ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो
इंक्रीज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, मैं बोलूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा होगा। ठीक है, चलो तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, आप देख सकते हो, तो ये नॉर्थ नॉर्थ देखो अपोज करेगा। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ अपोज करेगा तो ऑब्वियसली मोशन क्या होगा, ये ऑसिलेशन क्या होंगे, डैम्प होंगे, रिड्यूस होंगे, और फ्लड क्या हो सकता है, रेस्ट पे आ सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये डिक्रीज करता है फ्लक्स को, ये करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि ये फ्लक्स डिक्रीज करता है। तो चलो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अब देखो कर्व फिंगर्स है करंट की डायरेक्शन में, तो ये आप ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आप देखो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इसको नॉर्थ पोलैरिटी मिली, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह डायरेक्शन में आ रहा होगा, मतलब ये फील्ड ऐसे है, तो ये फील्ड जो है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। एक्सटर्नल फील्ड आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, विच इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस साइन। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट मिली, ये देखो उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, अपोजिट आएगी, मतलब ये क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन द प्लेट इज स्विंगिंग आउट ऑफ दिस magnetic field inside the two poles of bar magnet. So here we can say whenever the plate is swinging out, the magnetic flux link with it is what, decreases. magnetic flux इसके साथ जो लिंक है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। So current must induce in it in a such a direction to increase what, magnetic flux. इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स को इंक्रीज करने की डायरेक्शन में ट्राई करेगा, मतलब इट ट्राइज टू अपोजेस डिक्रीज इन फ्लक्स। ओके, जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। तो अपोज करना है तो कैसे करेगा, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में एज्यूम होगा, सपोज करो ऑब्वियसली ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा। साउथ पोल कैसे, आप देखो साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये मोशन, ये जो प्लेट बाहर जा रहा है, ये मोशन बाहर की तरफ है। ठीक है, प्लेट आउट जा रहा है, इसी वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो प्लेट को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब फ्लक्स डिक्रीज नहीं होने देगा, ये नॉर्थ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे राइट हैंड रूल से डायरेक्शन देखते हैं, ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये फील्ड इंक्रीज करेगा। ये देखो आप मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी खुद की मैग्नेटिक मोमेंट होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, m इज इक्वल टू आइए जितने होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आप देखो ऐसे, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है, तो मतलब ये क्या करने की ट्राई कर रहा है, फील्ड को इंक्रीज करने की ट्राई कर रहा है। ये क्या ट्राई कर रहा था, फील्ड को डिक्रीज करने की ट्राई कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अंदर जा रहा था, इसके साथ फ्लक्स लिंक है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ऑब्वियसली वो डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। और यहाँ पे ये जब बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स जो इसके साथ लिंक है वो क्या कर रहा था, ये फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा था, तो ऑब्वियसली ये क्या ट्राई करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। करंट ऐसे ही डायरेक्शंस में इंड्यूस होते हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी सीन इट द लेंज लॉ। So here we can see that when this metallic plate swinging in and swings out, okay, in both this case you can see that direction of induced current is what, opposite. Induced current की डायरेक्शन देखो opposite है, जब swing in कर रहा था तो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, जब swing out कर रहा है तो कौन सी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, so जब ऐसे आ रहा होगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल कर रहा होगा, जब बाहर जा रहा है तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों ही केस में इसके मोशन को ये क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसीलिए ओसिलेशंस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। और ओसिलेशन रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कहीं पे गई, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे गई, दिस काइनेटिक एनर्जी ओके कन्वर्ट्स और यू कैन से ट्रांसफर्स इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हाउ, लेट्स सी। जैसे ही ये करंट इसमें कॉपर प्लेट में फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी इन शॉर्ट किसकी में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ओवर हियर in a plate, okay, which oscillates between these two strong poles of a bar magnet. So here to reduce the effect, what we have to do, we made a slots in a copper plate. We can also use
a copper plate which is made up of what? Holes. So overall you can say holes or you can say slots are made up in a copper plates. Why? Because here you can see that जब ये प्लेट्स में आप लोग स्लॉट्स बनाओगे तो सम प्लेट आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका जूम किया हुआ सेक्शन यहाँ पर सर ने दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ऐसे बन जाएगा ये आपका प्लेट। चलो तो जब प्लेट ऐसे है तो आप देखो ये जूम किया हुआ सेक्शन, करंट को जो फ्लो करने के लिए पहले एरिया अवेलेबल था, पूरे में फ्लो हो रहा था, वो एरिया जो फ्लो करने के लिए अवेलेबल था वो क्या हो गया? लेस हो गया। देखो सिर्फ अब इतना एरिया ही अवेलेबल, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। सो ये वी कैन से व्हेन दी स्लॉट्स और होल्स आर मेड इन सच कॉपर प्लेट्स, एरिया अवेलेबल टू फ्लो द करंट बिकम्स लेस, एंड वी नो दैट equation of resistance is what R is equal to rho L by A. As the area available to flow the current becomes less, so we can say resistance of the path to flow the current becomes increases. As the resistance is increases, so we can say according to Ohm's law we can say resistance is increases, करंट आपका क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। और जैसे ही आपका करंट डिक्रीज होगा हीट एनर्जी एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आपका देखो हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्या होता है? आई स्क्वायर होता है, एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। तो जैसे ही आपका आई डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हीट एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, करंट लेस है, एडी करंट क्या है? कम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा? सो व्हेनेवर सच plate made up of slots or you can say holes is allowed to swing between the two poles of a strong bar magnet, what happens? The plate swings freely, okay, and it will oscillate for a long time, okay. Now it is the method how we can reduce the electromagnetic damping, how we can reduce the eddy currents in a plate, okay, which is we can say oscillate between the two poles of a strong magnet, okay. Now these eddy currents are undesirable. Why? Because this eddy currents dissipates energy in form of heat. So many such devices like what? Transformer, the other one is dynamo, electric motor, and many other devices in which a metallic core is used, okay. In that devices eddy currents are generated in that metallic core. So here if single solid piece of metal is used to make the core of a transformer or you can say dynamo or you can say electric motor, then you can say that area available for the flow of current is very large. area ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब हीट लॉस भी ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सॉलिड पीस ऑफ आयन ऑफ मेटल टू मेक द कोर, if we are using laminated metallic layers, okay, to make the core part of the transformer or you can say electric motor or you can say any other such devices, then you can see that ये आप देखो कोर पार्ट जो है उसमें ये मेटालिक लेयर्स है, ठीक है। ऑल दैट मेटालिक लेयर्स आर बंच्ड टुगेदर, ओके। हियर यू कैन सी दैट टू मेटालिक लेयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ओके, with the help of what? Insulating materials. That insulating material is what? Made up of lacquer or varnish. Means here insulation is used between the two metallic layers, okay. So what happened due to it? इसकी वजह से क्या होगा? Here you can see that here as the lacquer or you can say varnish such as insulating material are used here between the two metallic layers, so area available for flow of current आप देखो ये ऐसे था तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये करंट ऐसे फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। सो हियर one condition is that the magnetic field over here must be what? Parallel to this metallic layers, okay. ये layers से जो है ऐसे उससे फील्ड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये पीस अगर ऐसे 3D में इनसाइड है तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप देख सकते हो ये यहाँ पे सर ने 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये फील्ड अगर ऐसे पैरेलल जा रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इट कट्स व्हाट? पाथ ऑफ current, it cuts the path of current, so area available for flow of current is less. As the area available for flow of current becomes less, so resistance, okay, to flow the current becomes large,
As resistance is increases, so we can say current is decreases. As AD current is decreases, so heat loss due to it, we know that it is directly proportional to square of that current. So as current is decreases, heat loss is also decreases. So it is the method how one can reduce, okay, the loss due to AD current. Loss due to AD current in a transformer, in a dynamo, an electric motor, or you can say in any such devices in which wires are wound on a metallic core. Okay.